सामिन व्यूवर, जुलियाना उस्मान आपकी खदमत में हाजिर है एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि कल हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा था एंड आई हैव एक्सप्लेन यू अबाउट अफर्मेटिव टेंस। नाउ वी विल डू negative tense of future indefinite. So there is formula, subject, will, not, verbs first form and object. Will is helping verb like do, did and does, and not because it is a negative sentence, that is why I have used here not. After not, verbs first form will come and at the last object will be written. Then full stop. Do not forget to insert full stop. I have said to you again and again. So there are few sentences in Urdu and I will convert them in future indefinite tense. Such as मैं आज रात मूवी देखने नहीं जाऊंगा. Subject is I will not go to. अच्छा, क्या verb first form क्या है? Watch. देखने को हम क्या कह रहे हैं? Yesterday I have told you about watch and look. I will not go to watch movie. फिर आज रात को हम कहते हैं tonight. Tonight we use for आज रात. मैं आज रात मूवी देखने नहीं जाऊंगा. I will not go to watch movie tonight. Understood? So this was the first sentence and I will go for second sentence. सारा और दानियाल अगले महीने लैपटॉप नहीं खरीदेंगे. सारा अब एंड और के लिए यूज होता है and Daniel, both are subjects. As I have told you that more than one subject, more than one names. So Sarah and Daniel are more than one names. Sarah and Daniel, then according to formula, will not. लैपटॉप नहीं खरीदेंगे. I haven't written here खरीदेंगे. Sarah and Daniel will not buy a laptop. अच्छा, अगले महीने ये है नेक्स्ट मंथ. सो द थर्ड सेंटेंस इज ये गेम 10 मिनट में शुरू नहीं होगी. दिस गेम इज अ सब्जेक्ट. Will not, according to formula, you can see here. अच्छा, शुरू नहीं होगी के लिए we use start and begin also. So begin I'm using here as a verb and its second form is began and third form is begun. Means begin or began and begun. Here first form GIN and second form GAN and at third form GUN.
This game will not begin within, अब 10 मिनट में शुरू नहीं होगी तो within 10 minutes. Alright, this game will not begin within, अब यहाँ ये 10 मिनट हैं, ये 5 मिनट्स भी हो सकते हैं, इस तरह। उस्मान साहब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे। उस्मान साहब को हम इंग्लिश में मिस्टर उस्मान कहेंगे। मिस्टर उस्मान will not, according to formula, then sign is a verb here. ठीक है, साइन करना। अच्छा, हम कॉन्ट्रैक्ट को we say in उर्दू मुआहिदा, तो साइन इज अ फर्स्ट फॉर्म एंड साइंड यानी कि SIGN और साइंड इस तरह अगर आप लिखेंगे तो दिस इज सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म इज also signed, but the first form is signed. Will not sign. अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, so this contract is a object. Have you got my point? So the last sentence is Mrs. Usman will not sign this contract. This is a fourth sentence. So the fifth sentence is हम शॉपिंग के लिए लॉकडाउन की वजह से नहीं जाएंगे. So the space is not available here. That is why I am writing this sentence at the upward. So removing this first sentence. हम शॉपिंग के लिए हम लॉकडाउन की वजह से शॉपिंग के लिए नहीं जाएंगे. Just for convenience, just for your convenience, I have written this. So the English will be, as subject is he, we will not go. Go is a verb क्योंकि जाना, so verb is first form. So we will not go for shopping. Must remember one thing, this is a preposition. For has been used here, preposition के तौर पर यूज हुआ है ये. तो जब भी हम ING फॉर्म लगाते हैं तो इससे पहले हम for ज़रूर यूज़ करते हैं अगर हमें preposition लगाना हो. और स्पेशली फॉर इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, दे मस्ट रिमेंबर दैट कि जब भी अगर उनको यहाँ पर ब्लैंक आ जाए और यहाँ पूछा जाए कि कौन सा preposition लगेगा, सो यू हैव टू इंसर्ट for शॉपिंग. अच्छा, क्यों नहीं शॉपिंग पर जा सकते हैं? बिकॉज ऑफ लॉकडाउन भी आप कह सकते हैं या ड्यू टू लॉकडाउन भी कह सकते हैं. तो बोथ सेंटेंसेस आर करेक्ट. ड्यू टू लॉकडाउन, ये आजकल लॉकडाउन है तो हर चीज बंद है. सो अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस आई हैव यूज्ड दिस सेंटेंस. So this is a fifth sentence. We have completed negative sentences. Now we will do interrogative of future indefinite tense. So the formula is will, subject, verb first form, object and question mark.
Again reminding you, will is here helping verb, like do, did and does. So we are converting the sentences. Sentences are same. क्या हम आज रात मूवी देखने जाएंगे? क्या होगा? will come first. Will, subject is we. ठीक है, जाएंगे, so the verb is go. Will we go for watching movie tonight? Watching movie tonight. Not full stop but question mark. Will we go for watching movie night and question mark? So the sentence has been completed here. The second sentence comes, क्या सारा और दानियाल अगले महीने लैपटॉप खरीदेंगे? Will, क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है, that is why we are using here will. Will Sarah and Daniel, will Sarah and Daniel buy laptop? कब खरीदेंगे? नेक्स्ट मंथ. सवाल पूछ रही हूँ कि विल सारा एंड दानियाल बाय लैपटॉप नेक्स्ट मंथ? क्वेश्चन मार्क. क्या ये ड्रामा 1 घंटे में शुरू होगा? Look this sentence very carefully. क्या ये ड्रामा 1 घंटे में शुरू होगा? I have removed the word movie and used drama, and also change 1 घंटा. क्या ये ड्रामा 1 घंटे में शुरू होगा? Will this drama is subject. अच्छा, हम यहाँ स्टार्ट यूज कर सकते हैं एंड ऑल्सो बिगिन. सो यूजिंग द सेम बिगिन. एक घंटे में शुरू होगा तो इसके साथ विदिन आएगा. अब देखें मैंने ये क्यों चेंज किया. 1 घंटा मैंने एक पर्पसफुली जो है मैंने एक पर्पस के तहत लिखा है. विदिन यहाँ में HOUR कहते हैं घंटे को. बहुत सारे लोग जो है इसको प्रोनाउंस हार करते होंगे. HOUR हार कहते हैं, जैसे H का साउंड ह का निकल रहा है, बट दिस इज एन इनकरेक्ट साउंड. हम H को हम अलिफ के साउंड में लेंगे, हम R कहेंगे, हार नहीं कहेंगे बल्कि इसको R कहेंगे. एंड मस्ट रिमेंबर वन थिंग कि जहाँ कहीं भी अलिफ की साउंड आती है वी यूज N, एंड N इज एन आर्टिकल. ठीक है, 1 घंटा तो NR. इसको प्रोनाउंस सही कीजिएगा क्योंकि अदरवाइज आप ग्रामर के मुताबिक यहाँ पर N नहीं लगा पाएंगे. सो will this drama begin with an NR? क्वेश्चन मार्क. क्या उस्मान साहब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे? Will Mr. Usman is subject. Sign is the form of a verb and this is the first form. Will Mr. Usman sign? Object is contract. This contract. And
question mark. Likewise, for fifth sentence, board has been filled and I cannot write anywhere, so you must convert yourself. ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कुछ कन्फ्यूजन्स होते हैं, कुछ डाउट्स होते हैं कि हाउ कैन वी यूज़ दीज वर्ड्स। तो मैंने एक सेशन रखा है आप लोगों के लिए, स्टेप फॉर रिमूविंग सम कन्फ्यूजन्स, सच एज एक आपने वर्ड सुना होगा वॉइस, जिसका मतलब है आवाज़, और आपने साउंड ये भी सुना होगा, सेम मीनिंग है आवाज़। लेकिन वॉइस और साउंड का हम इस्तेमाल हम अलग अलग जगहों पर करते हैं। सच एज वॉइस का मतलब होता है कि द साउंड प्रोड्यूस बाय एनी लिविंग बीइंग, यानी कि कोई भी जो जानदार शख्स या फिर कोई जानवर, उसके मुंह से जो आवाज़ निकलती है, सो वी यूज़ वर्ड वॉइस। ठीक है, जैसे कि आई लाइक आतिफ असलम्स वॉइस, मुझे आतिफ असलम की आवाज़ पसंद है। यानी कि किसी भी जानदार, कोई भी जो अल्लाह की बनाई हुई जानदार शय है, चाहे वो इंसान हो या फिर जानवर, कोई भी जानवर हो, उसके मुंह से जो आवाज़ निकलती है वी यूज़ वॉइस। तो मुझे आतिफ असलम की आवाज़ पसंद है, तो मैं यहाँ साउंड यूज़ नहीं करूँगी, आई विल यूज़ हेयर वॉइस। इफ़ यू यूज़ हेयर साउंड दिस वुड बी इनकरेक्ट। तो लिहाजा यहाँ हम वॉइस का इस्तेमाल करेंगे। एंड लाइकवाइज साउंड हम कब यूज़ करते हैं? जब हम एनी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट जब हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट का नाम लेते हैं तो उस वक्त वी यूज़ साउंड। हालांकि इसका मतलब भी आवाज़ ही है, लेकिन हम यहाँ पर साउंड उनके लिए यूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पर ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन है, जैसे टीवी है, जैसे VCR है। तो ये तमाम चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक हैं। इनमें से जो भी आवाज़ आ रही है, प्रोड्यूस हो रही है, तो उनके लिए हम साउंड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि द सेल फोन साउंड इज़ डिस्टर्बिंग मी। मिसाल के तौर पर जो है सेल फोन की घंटी बिल्कुल हाई वॉल्यूम पर रखी है, तो मैं कहूँगी द सेल फोन साउंड इज़ डिस्टर्बिंग मी अ लॉट। ठीक है, तो आप समझ में आ गया कि आपको when you have to use voice and when you have to use sound. So there is a big difference, to not make mistake here. Likewise, on second number there are few words: see, watch and look. See भी देखने के लिए होता है, watch is also for देखना and look is also used for देखना। लेकिन हम कैसे यूज़ करें? स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसके बारे में। कहीं पर भी इनका दिल चाहता है दे यूज़ लुक, कहीं पर भी इनका दिल चाहता है दे यूज़ वॉच, और कहीं पर भी इनका दिल चाहता है दे यूज़ सी। बट यू नो देयर आर डिफरेंट यूजेस ऑफ दीज वर्ड्स। सी हम कब यूज़ करते हैं? जब हम अपनी आँखों से कोई चीज़ देखते हैं। लाइकवाइज वॉइस, क्योंकि अल्लाह ने हमें मुंह दिया है, हम अपने मुंह से आवाज़ निकालते हैं, लिहाजा मुंह से निकली हुई हर आवाज़ वॉइस कहलाती है। लाइकवाइज गॉड हैज़ गिवन अस आइज, ठीक है, एंड वी यूज़ दीज आइज फॉर लुकिंग समथिंग। ठीक है, तो अब अल्लाह ने चूँकि हमें आँखें दी हैं, तो जाहिर हमारी नज़र कहीं पर भी पड़ सकती है। तो जहाँ पर भी हमारी रेंडमली सरसरी नज़र पड़ जाती है तो वी यूज़ वर्ड सी। ऑलराइट, यानी कि जब भी हमारी नज़र किसी भी चीज़ पर पड़े वी यूज़ सी। बट व्हेन वी यूज़ वॉच हम तब यूज़ करते हैं
when we want to watch something intentionally, जब हम इरादतन किसी चीज को देखना चाहते हैं, सपोज दैट आई वॉन्ट टू वॉच अ मूवी, क्योंकि मेरा किसी मूवी को देखने का दिल चाह रहा है, दैट इज वाई आई विल यूज हेयर द वर्ड वॉच। एक तो इंटेंशनली, एंड द सेकेंड रीजन इज मूविंग ऑब्जेक्ट। मूवी में क्योंकि आप लोगों को जो है वो मूव करते हुए देखते हैं, सो विद मूविंग ऑब्जेक्ट वी विल यूज वॉच। लाइकवाइज लुक, लुक का मतलब ये है कि हमें जो है पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ जब हमें कहा जाता है कि इस पर्टिकुलर नुक्ते पर आपको देखना है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि स्टूडेंट्स को कहूँ कि लुक एट द ब्लैक बोर्ड, यानी कि मैं उनको डायरेक्ट कर रही हूँ कि देखो ब्लैक बोर्ड की तरफ, या मैं ये कहूँ कि लुक एट इसकी तरफ देखो, तो इसका मतलब है कि मैंने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ स्टूडेंट्स को माइल किया कि आप देखें इस तरफ, तो वहां हम लुक यूज करेंगे। सो वी हैव सम एग्जांपल्स हियर। जस्ट फॉर सीइंग, आई सॉ आलिया एट शॉपिंग सेंटर। मैंने आलिया को शॉपिंग सेंटर में देखा, मैं जा रही थी, आई वॉज ऑल्सो मूविंग इन द शॉपिंग सेंटर, सडनली माई आई सॉ आलिया, यानी कि मैं शॉपिंग सेंटर में घूम रही थी और अचानक से मेरी आंखों ने देखा कि आलिया यहाँ से जा रही है, तो मैं यहाँ पर यूज करूँगी आई सॉ आलिया एट शॉपिंग सेंटर। ऑलराइट, लाइकवाइज फॉर वॉचिंग as I have told you earlier that we use watch when we want to see something intentionally. So she is watching movie, उसे कोई मूवी चलाई हुई है and she is watching movie. और the third example is कि किसी particular point की तरफ आपको डायरेक्ट करना है, तो look at the blackboard. So these were the examples of these words. I will go ahead. आपको क्या नजर आ रहा है यहाँ पर? n नजर आ रहा है, n। अब n नंबर ऑफ टाइम्स। अब बहुत हैरान हो रहे होंगे, यू विल बी वेरी सरप्राइजिंग दैट कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ n, बिकॉज नो वर्ड हैज बीन यूज्ड एट सिंगल लेटर, बट हियर n is using as a word. Why and how and what is the meaning of this thing? n number of times का मतलब होता है many times. And how you will convert, how you will use this sentence in English, these words in English, n number of times, such as if I say I have attempted CSS exam अब मैं यूज करती हूँ n number of times. n number of times का मतलब क्या है बताती चलूँ कि CSS का एग्जाम सिर्फ जो है 3 दफ़ा अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँ कि मैंने कई दफ़ा अटैम्प्ट किया है, इसका मतलब है कि मैं 3 दफ़ा अटैम्प्ट किया है। आई हैव अटैम्प्टेड CSS एग्ज़ाम n नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि मैं कई दफ़ा CSS का एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर चुकी हूँ। एक तो ये एग्जाम्पल हो गई। द सेकेंड एग्जाम्पल यू मे नोटिस हियर कि I have visited Lahore. फिर आप कहेंगे n number of times. ठीक है, आई हैव विजिटेड लाहौर कितनी बार? n नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि मैं कई दफ़ा लाहौर का विजिट कर चुकी हूँ।
तो n नंबर ऑफ टाइम्स जहाँ पर भी आता है इसका मतलब होता है कि many times, not time. It's alright. I hope so you understood about this video. This confusion is faced by many students. I tried to remove it. There are a lot of words by which students feel confusion. I will try to remove them also. But one request, don't forget to subscribe my channel, watch my videos fully and learn on daily basis. तब तक के लिए जुलियाना उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।